नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। कोरोना वायरस की चपेट में पुलिस के आला अधिकारी भी। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर कोरोना से संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार 60,000 के ऊपर से रिकॉर्ड संक्रमण के मामले 24 घंटे में आ रहे हैं। हर वर्ग, हर तबके के लोगों को यहां वायरस अपने कब्जे में ले रहा है। सबसे बड़ी खबर इस बीच सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार शनिवार को उन्होंने अपनी स्वैब जांच करवाई थी, जिसका रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनमें कोरोना के थोड़े लक्षण देखे गए हैं। इस बीच उनका चिकित्सा चल रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी के इंडोर स्टेडियम में बन रहे सेफ होम का लिया जायजा। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने इंडोर स्टेडियम में बन रहे सेफ होम का जायजा लिया। ज्ञात हो कि प्रशासन की ओर से कुछ दिनों पहले इंडोर स्टेडियम में सेफ होम बनाने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत इंडोर स्टेडियम के सेफ होम बनने का कार्य शुरू हुआ है। इंडोर स्टेडियम में सेफ हाउस बनने को लेकर पहले स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी सेफ होम बनने का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। हालांकि प्रशासन से पहले कहा गया था कि इंडोर स्टेडियम में 100 बेडों का सेफ होम बनाया जा रहा है, लेकिन आज मंत्री गौतम देव ने कहा कि यहां पर 70 बेडों का सेफ होम बनाया जा रहा है। यदि सेफ होम की और जरूरत पड़ती है तो अन्य जगहों पर भी। শিলিগুড়ির মধ্যে এটা তৈরি হচ্ছে ইনডোর স্টেডিয়ামে। এখানে মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ হচ্ছে। এখানে 70 জন পেশেন্ট এখানে থাকতে পারবে এবং আমরা চেষ্টা করব পেশেন্ট যারা থাকে, আর যদি ফিমেল থাকে তো যদি ফ্যামিলি থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা এরকম ফ্যামিলির মধ্যে, তাহলে সেখানে ফিমেলকে অ্যালাউ করা যাবে। তাছাড়া এটা জেনারেলি মেল থাকবে। এখানে আমরা 40টা ফ্যানের অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। এখন 20টা ফ্যান আছে, 40টা ফ্যান থাকবে। এখানে একটা আইসোলেটেড জোন আমরা করছি, যেখানে 8টা বেড উইথ 8 অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকবে। ইন কেস অফ নেসেসিটি সেটা ব্যবহার করা হবে। ভেতরে ডক্টর সিস্টারদের 2টো রুম আছে, সেটা 12x2 12 ঘন্টা করে ডিউটি করবে। একজন ডাক্তার, 2জন সিস্টার থাকবে। আবার 12 ঘন্টা পরে আবার আরেকটা নতুন টিম, একজন ডাক্তার, 2জন সিস্টার আর 6জন হাউসকিপিং। এটা কিন্তু 24x7 থাকবে। 12 ঘন্টা করে তাদের ডিউটি হবে, তারা থাকবে। ঢোকার মুখে ওখানে অ্যাডমিশন রুম থাকবে, ইন্টারকাম পেশেন্টরা অ্যাক্সেস করবে অ্যাডমিশনের ওখানে, এবং ডাক্তারদের রুমের সাথে ইন্টারকাম থাকবে। খাবার বাইরে থেকে আসবে, যে মেডিকেল প্রোটোকল অনুযায়ী খাবার দেওয়া হয় সেই খাবার দেওয়া হবে। 8টা টয়লেট আছে উইথ ওয়াশিং ফেসিলিটি, ডাক্তারদের সিস্টারদের টয়লেট বাদ দিয়ে সেই টয়লেটগুলো কাজে লাগানো হবে। আর ওখানেও 2টো টয়লেট আছে, সেই টয়লেট কাজে লাগানো হবে। এখানে পুরো এরিয়া ফ্রি ওয়াইফাই জোন করে দেওয়া হচ্ছে, কারণ এখানে যারা থাকবেন তাদের নেট কানেক্টিভিটিটা আমরা ইনশিওর করছি। এবং এখানে টিভি দিয়ে দেওয়া হবে। সেই টিভি দিলে ওরা টিভিতে একটু সিনেমা টিনেমা এন্টারটেনমেন্ট নিউজ যা যা দেখতে চায় সেটা তারা দেখতে পাবে। হোপফুলি 4-5-6 দিনের মধ্যে কিছু ঠিক করতে হচ্ছে। এটা ওই স্ক্রিন দিয়ে একটু জল পড়ছিল, সেটা ঠিক করতে হচ্ছে। ইনডোরের চারিদিকে ওই নেট লাগানো হচ্ছে যাতে পাখি ঢুকতে না পারে। টয়লেটগুলো একটু ঠিক করতে হচ্ছে, ফ্লোরিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওয়ারিং ইত্যাদি করতে হচ্ছে। এবং এই ধরনের নানান ধরনের কাজ আছে, সেই কাজগুলো করছে। এবং এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা গিঞ্জেন, যেটা মেডিকেল ওয়েস্ট, সেটা কর্পোরেশনের থ্রু দিয়ে গিঞ্জেন ওটা নেবে। আর বাকি যেটা নর্মাল ওয়েস্ট হবে সেটা শিলিগুড়ি পুরো কর্পোরেশন, তারা সেই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা করবে। এই পদ্ধতিতে এখানে 70 বেডস হলে আমাদের যে ইনক্রিজ প্রেশার অফ দি পেশেন্ট সেটা অনেকটাই আমরা কমব্যাট করতে পারবো। কবে নাগাদ চালু হবে? এটা হয়ে যাবে 4-5 দিনের মধ্যে। আর বর্তমানে শিলিগুড়ি কী পরিস্থিতি রয়েছে? শিলিগুড়িতে এখন অনেকটা ম্যানেজেবল আছে, যে যত পেশেন্ট আছে আর যত ডিসচার্জ, তার মধ্যে একটা প্যারিটি হচ্ছে।
जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति के द्वारा कोविड-19 महामारी में निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशेष व्यक्तियों को किया गया सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस को केंद्रित जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति के द्वारा कोरोना वायरस महामारी के समय काल में अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य विशेष व्यक्तित्व को सम्मान देने का कार्यक्रम आज सामान्य रूप में आयोजित की गई थी। आज समिति के द्वारा चंपासरी ग्राम पंचायत अंतर्गत मेडल पलाश में पुनः दूसरी बार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जन नायक कर्पूरारी ठाकुर सेवा समिति सिलीगुड़ी शाखा अध्यक्ष रवि ठाकुर रहे थे एवं कृष्णकांत ठाकुर, मनोज कुमार ठाकुर, विवेक ठाकुर, वैशाल ठाकुर की विशेष उपस्थिति रही थी। समिति के द्वारा विभिन्न मीडिया कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। एसके लाइव न्यूज चैनल के अनूप थुलुंग राय, देवशीष मंडल, अमित सूत्रधर को समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही हमरो गोरखा न्यूज चैनल के प्रतीक्षा छेत्री समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम, संजय शाह, हरिओम शाह, आर सलीम हसन को भी सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत। अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से अलीपुरद्वार जिले में आज कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा निवासी 47 वर्षीय एक महिला पिछले एक सप्ताह से तोपसेखाता स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती थी। शनिवार देर रात इलाज के दौरान उसकी हालत अधिक बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस बीच अलीपुरद्वार जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6 पहुंच चुकी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज कोरोना वायरस पर जागरूक कराते हुए लोगों में बांटे गए मास्क एवं इलाकों को किया गया सैनिटाइज। चंपासरी ग्राम पंचायत अंतर्गत दक्षिण पलास नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी और ट्राइबल यूथ एंड कल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कराते हुए मास्क प्रदान करने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में भक्तिनगर थाना आईसी देवव्रत खा, दिलीप कुमार पाल के साथ अन्य अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज के साथ संगठन का ध्वज फहराकर किया गया। आज के इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन की तरफ से तापस राय एवं तेज कुमार खालको ने अधिक जानकारी दी है। नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी का सह संपादक तापस राय। हम लोग का प्रोग्राम यही था आज का जो विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य में आज हम लोग का यहाँ का नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से और पदमनगर थाना का प्रशासन का पक्ष से यौथ उद्योग में हम लोग आज में मास्क का और सैनिटाइज का प्रोग्राम और हम लोग का विश्व आदिवासी दिवस का पताका और नेशनल फ्लैग का ये सब प्रोग्राम था। हम लोग का आदमी लोग का हम लोग का प्रोग्राम का लिए सचेतन किया। कोविड-19 के लिए जो महामारी चल रहा है, इस महामारी का चलते हम लोग का सोशल डिस्टेंस मेंटेन, उसका बाद हम लोग का घर घर जाके हम लोग सैनिटाइज कर रहा है। अभी हम लोग सिमुलगुड़ी दक्षिण प्लास का हर घर में जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे। यही हम लोग का आज उद्देश्य है। विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य में आज में हम लोग ये प्रोग्राम यौथ उद्योग से प्रशासन का तरफ से पदमनगर थाना और हम लोग का नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी पक्ष से ये प्रोग्राम लिया गया है। यहाँ का बहुत सारा यूथ सब हम लोग का सहयोगिता में है नवचेतना का और यहाँ का गांव का जो हम लोग का समाज सेवी उसका भाई लोग, बहुत सारा भाई लोग हम लोग का यहाँ पर सहयोगिता किया है। बहुत सारा का भी प्रोग्राम के लिए हम लोग का सहयोगिता किया है। ये प्रोग्राम हम लोग 1 से 1.5 घंटा हम लोग का चलेगा। घर घर जाके हम लोग सैनिटाइज करेंगे और मास्क बिली करेंगे और कुछ दवाई है हम लोग का जो विटामिन टैबलेट, उस दवाई को भी हम लोग घर घर जाके ये करेंगे प्रोग्राम। हम लोग का आज का प्रोग्राम नवचेतना और पदमनगर थाना का यही है। हाथी के कुचलने से वृद्ध की मौत। शौच के लिए घर से बाहर निकला था वृद्ध। अलीपुरद्वार के बैरपाड़ा में आज सुबह शौच के लिए घर से निकले एक वृद्धा को हाथी ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की शिनाख्त बरपाड़ा के रहीमपुर चाय बागान के गोदाम लाइन निवासी बगन ओराव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रविवार तड़के सुबह करीब 3 बजे हादसा हुआ। सुबह शौच के लिए बंधन ओराव घर से निकले थे, तभी जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें पैर से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वन विभाग के दलगांव रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया गया। पिछले 5 महीनों से बांग्लादेश में फंसा हुआ है दक्षिण दिनाजपुर जिले का एक युवक। वृद्ध और बीमार माता पिता बेटे के इंतजार में स्थानीय प्रशासन से लगा चुका है कई बार गुहार। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिमपुर का रहने वाला श्यामल पाल बांग्लादेश में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ वैध वीजा पासपोर्ट के साथ बांग्लादेश गया था। अप्रैल महीने तक उसको वापस लौटना था, लेकिन इस बीच
देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया। विमान यातायात बंद कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय रस्तों को भी सील कर दिया गया। बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई। इसी कारण युवक वहां फंस गया। हालांकि उसने भारत में वापस लौटने के लिए बांग्लादेश स्थित भारतीय हाई कमीशन से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हरिमपुर के रहने वाले युवक श्यामल पाल के वृद्ध माता पिता, जो बेटे का काफी समय से इंतजार करने के बाद कोई देखभाल नहीं करने के कारण रायगंज के स्थित ग्वालपाड़ा अपनी बेटी दामाद के पास आ गए हैं। बेटी दामाद इनकी देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी दवाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। दरअसल श्यामल पाल के पिता शरेश और माता ज्योत्सना देवी दोनों ही किडनी की बीमारी से पड़े थे और प्रत्येक महीने इन लोगों को दवाई लगती है, लेकिन बेटी दामाद के पास इतने पैसे नहीं है कि दवाई करवा सके। इसलिए पाल कई बार स्थानीय प्रशासन से इस संबंध में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार बांग्लादेश में फंसे युवक श्यामल ने एक वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगाई है। আমি গত 1 মার্চ বাংলাদেশে এসেছি। দীর্ঘ 5 মাস ধরে আটকে আছি। আমার দুশ্চিন্তায় বাবা মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি বাবা মার অসুস্থর কথা এখানকার ইন্ডিয়ান হাই কমিশন অফিসে জানিয়েছি, তাতে কোনো লাভ হয়নি। আমরা এখানে খুব দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আমার কাছে যা টাকা ছিল তা প্রায় সবই শেষ। তাই সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ যেন আমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে। প্রায় সব রাজ্যের লোক চলে গেছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের লোক প্রায় 2500 লোক আটকে আছে। আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে। দয়া করে আমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করুক সরকার। সব রাজ্যের লোক চলে গেছে, কিন্তু আমাদের ফেরানো হচ্ছে না কেন? আমরা এখানে খুব কষ্টে আছি। তাই দয়া করে যদি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতো, তাহলে প্রায় 2500 লোকের পরিবার এবং তার সন্তানরা খুব খুশি হতেন। এখন ছেলেটা হয়তো বাংলাদেশে জায়গায় আটকা আছে, আসতে পারছে না লকডাউনে, আবারও বর্ডার বন্ধ হয়ে আছে। খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে। দেখবে কেউ, দেখার মতো একটাই ছেলে আমার বাবা। যখন আমার জামাই, তখন আমরা এখানে পড়ে আছি, বাড়ি ঘর চালা চাবি দিয়া। এখন দেখবে কে? মামার বাড়িতে জায়গা আটকা পড়ে আছে, কি খায় কি না খায় বাবা আসতেছে, তাই একদিকে পারে না, আর কে দেখবে? लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 200 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में करीब 200 भाजपा समर्थक रविवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रविवार सुबह मालदा शहर के वृंदाबानी मैदान संलग्न मुक्त मंच इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में इन सभी ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाल ही में पार्टी की ओर से जिला या कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाले प्रसन्नजीत दास के नेतृत्व में आज करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल नेताओं के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी इस इलाके में मजबूत हुई है। बता दें कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहर के मुक्त मंच इलाके में आयोजित कार्यक्रम में जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने इन सभी को पार्टी का झंडा थमाकर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मालदा जिले व कांग्रेस के अध्यक्ष पद सौंपा है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा एक सच्चे सैनिक के रूप में एवं पार्टी सुप्रीमो के निर्देश के अनुसार कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर दूसरे दलों से लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। আমরা গাজল ব্লক থেকে বিজেপি যুব মোর্চা থেকে আজকে প্রসেনজিৎ হাত ধরে আজকে আমরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে জয়েন করতে এসেছি। কেন আমরা দীর্ঘদিন বিজেপি করেছি, বিজেপি যুব মোর্চা লোকসভা ভোট করিয়েছি আমরা। আমাদের রাস্তাঘাট কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এবং ভালো লাগছে না, বিজেপি পার্টিতে আমাদের ওরকম করছে না। রাস্তাঘাট কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দাঙ্গা মাঙ্গা হচ্ছে। তারপরে আমাদের যেটা সুযোগ সুবিধা, যেগুলো প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের মানে অনেক প্রবলেম। হ্যাঁ, মর্যাদা দিচ্ছে বলতে কি যে যারা নতুন ঢুকছে তাদেরকেই দাম দিচ্ছে, আমাদেরকে দাম দিচ্ছে না। আমরা পুরনো বিজেপি কর্মী, আমাদেরকে কোনো দাম দিচ্ছে না। তার জন্য আমরা আজকে প্রতিনিধিদের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলাম। বিজেপির মালদা জেলার যুব মোর্চার বেশ কিছু নেতৃত্ব এবং আদিবাসী বেশ কিছু নেতা যারা বিগত দিনে বিজেপি দলের সাথে যুক্ত ছিল, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে এবং আমাদের যুব সভাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুব আন্দোলনে সামিল হতে তারা আজকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো। আজকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস, তার মধ্যে আদিবাসীর বেশ কিছু নেতৃত্ব আমাদের দলে যোগদান করলো। আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে আগামী দিন বৃহত্তর তৃণমূল যুব কংগ্রেসকে আন্দোলন সংগঠিত করব বিজেপির বিরুদ্ধে। এবং আজকের একটা বিশেষ দিন 1942 সালের 9 আগস্ট, যে দিন মহাত্মা গান্ধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। আজকে আমাদের সেই দিনটাকে স্মরণ করি এবং পাশাপাশি আমরা আজকে এখান থেকে মাস জয়েনিং শুরু হলো। প্রতিটা ব্লকে প্রচুর হাজার হাজার যুবকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে ইতিমধ্যেই। সবে মাত্র আমরা আজকে নেতৃত্বদেরকে জয়েন করালাম। এনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রতিটা ব্লকে আগামী দিন বিজেপি ছেড়ে লাইন লেগে যাবে, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান শুরু হবে। আসছি মালদা, আমরা গাজল থেকে। তো আমরা আসছিলাম বিজেপি কর্মী করছিলাম গাজল বিজেপি থেকে। তারপরে আমাদের এখন হচ্ছে যে বিজেপির ধরন থেকে আমাদের কোনো কাজে কোনো অসুবিধা, রাস্তাঘাট কিছু করতে পারছেন না। আমাদের এখন আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করছেন, আমাদের ভালো কাজ করছেন। আমাদের আগামী থেকে দেখছি আমাদের উন্নত অনেক কিছু করে দিয়েছে। আমাদের আদিবাসীকে কিছুটা অনেক রকম হুমকি দেখাচ্ছে বিজেপি থেকে। আমরা অনেক ভালো চাইছি মমতা ব্যানার্জিকে, আমাদেরকে ভালো লাগে। আমাকে তার জন্য ওদের জন্য আসছি গাজল ব্লক থেকে। আমার নাম মন্টু সরেন। আমাকে চলে আসছি মালদা জেলা প্রসেনজিৎ অনুরোধ, ওকে আমি ভালো মনে করি। ওর জন্য আমরা মালদা কমিটি থেকে আমরা আনন্দ করি, আমরা আসছি ওর কাছে। এখানে আমার ক্ষমা। আচ্ছা, কোন পার্টি জয়েন করলেন? আমি তৃণমূল থেকে পার্টি করলাম, এবার বিজেপি থেকে তৃণমূল পার্টি করলাম।
আমরা গাজল ব্লক থেকে বিজেপি যুব মোর্চা থেকে আজকে প্রসেনজিৎ হাত ধরে আজকে আমরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে জয়েন করতে এসেছি। কেন কারণটা কেন আমরা দীর্ঘদিন বিজেপি করেছি, বিজেপির যুব মোর্চা লোকসভা ভোট করিয়েছি আমরা। আমাদের রাস্তাঘাট কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এবং ভালো লাগছে না, বিজেপি পার্টিতে আমাদের ওরকম করছে না। রাস্তাঘাট কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দাঙ্গা মাঙ্গা হচ্ছে। তারপরে আমাদের যেটা সুযোগ সুবিধা, যেগুলো প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, এবং আমাদের মানে অনেক প্রবলেম। আপনাদের কি দলের মর্যাদা দিচ্ছে? হ্যাঁ, মর্যাদা দিচ্ছে বলতে কি, যে যারা নতুন ঢুকছে তাদেরকেই দাম দিচ্ছে, আমাদেরকে দাম দিচ্ছে না। আমরা পুরনো বিজেপি কর্মী, আমাদেরকে কোনো দাম দিচ্ছে না। তার জন্য আমরা আজকে প্রসেনজিৎ হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করলাম। ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को माकपा की ओर से मनाया गया भारत बचाओ दिवस के रूप में रायगढ़ शहर में निकाली गई विरोध रैली। अंग्रेजी हुकूमत में देश को आजादी दिलाने के लिए आज के दिन यानी 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी प्रकार से देश को भाजपा की श्रमिक विरोधी नीतियों से बचाने के लिए माकपा की ओर से आज भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। वाम मोर्चा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रम विरोधी है, जिसके कारण आम मजदूरों और श्रमिकों की अवस्था बदहाल है। इसलिए भारत बचाओ आंदोलन वाम मोर्चा की ओर से शुरू किया गया है। इसी के तहत वाम मोर्चा की ओर से रायगढ़ शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली सिलीगुड़ी मोड़ से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए विद्रोही मोड़ में खत्म हुई। रैली का नेतृत्व C2 केंद्रीय कमेटी के नेता परितोष देवनाथ, CPM जिला सचिव अपूर्व पाल सहित अन्य वाम मोर्चा नेताओं ने किया। माकपा नेताओं ने कहा कि हमारी मांग है कि श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 29,000 की जाए और उनके लिए कम से कम 10 मासिक पेंशन की शुरुआत की जाए। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी है, इसलिए नीतियों में परिवर्तन करना होगा। आज के ऐतिहासिक भारत ছাড়ো আন্দোলনের 9ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আজকে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল 8ই আগস্ট থেকে 9ই আগস্ট। আজকে আমরা সারা দেশের কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর আমরা বুঝতে পারছি যে দেশের সরকার তাদের যা দায়িত্ব ছিল করার এই সময়কালে তারা করেনি, এই লকডাউনের সময়কালে। বরঞ্চ কৃষক, শ্রমিক এবং ক্ষেতমজুরের পক্ষে নীতি গ্রহণ না করে এই দেশের যারা মহাধনী তাদের পক্ষে সরকার নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের যে মূল ভিত্তি কয়লা, খনিজ সম্পদ, ব্যাংক, বিমা, মহাকাশ বিজ্ঞান, পারমাণবিক শক্তি, রেল, দেশের যে ভিত্তি যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মানে মেরুদণ্ড দেশে, আজকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে এবং সেখানটায় বলা হচ্ছে 100% ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট FDI করতে পারবে, অর্থাৎ বিদেশি বিনিয়োগ করতে পারবে। তাহলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়াই করেছিল। দেশের শ্রমজীবী মানুষ বলছে এই লকডাউনের সময় মানুষ কাজ হারিয়েছেন। দেশের 14 কোটি থেকে 24 কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। কিছু মানুষ কাজে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু সব মানুষ কাজ পাবেন না। এই লকডাউনের সময়ে আমরা বলেছিলাম এই যারা কাজ হারা মানুষ তাদেরকে 750 টাকা 7,500 টাকা করে দিন। এই পরিবারের সব মানুষকে 10 কেজি করে চাল অথবা গম দিন। সরকার সেদিকে নজর দেয়নি। সরকার নজর না দিয়ে আজকে যে বেকারি বাড়ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, হতাশা বাড়ছে, অনাহারে মৃত্যু বাড়ছে এবং যেটা হবে আত্মহত্যার সংখ্যাও আগামী দিনে বাড়বে। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকার মানুষের কথা ভাবছে না, কৃষকের কথা ভাবছে না, শ্রমিকের কথা ভাবছে না। আমরা বলছি 100 দিনের কাজকে গ্রাম শহরে নিয়ে গিয়ে 200 দিন করতে হবে এবং আজকের দিনে জিনিসপত্রের লাগাম ছাড়া যে দাম, সেই দাম আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং এই সমস্ত মজুরি 200 টাকার থেকে 600 টাকা পার ডে করুন। সরকার জনগণের এই দাবিকে কর্ণপাত না করে আজকে মানুষের পক্ষের নীতি গ্রহণ না করে দেশ বিক্রি করার, দেশের যে স্বয়ংবরতা, দেশের যে আত্মনির্ভরতার স্লোগান মুখে দিয়ে দেশের আত্মনির্ভরতাটাকে তিনি ধ্বংস করছেন। তাই আমরা বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো, আর আজকে দেশের শ্রমজীবী মানুষ তাদের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে মোদি তুমি গদি ছাড়ো। আর দেশটাকে বাঁচাতে গেলে মোদি তোমাকে গদি ছাড়তেই হবে। সেই কারণে আজকে আমাদের এখানে মিছিল হবে, পথসভা হবে। अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, देश में बनेंगे 101 रक्षा उपकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय
101 से ज्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध एम्बार्गो पेश करेगा। दरअसल पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव में मोदी सरकार ने आत्मरक्षा पर विशेष तौर पर जोर दे रही है। एक तरफ जहां हथियारों की खरीदारी की जा रही है और दूसरी तरफ देश में हथियारों के उत्पादन पर जोर दे रही है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादकों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जाएगा। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर चरम पर, दूसरी ओर चीन में ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत, पूरा इलाका सील। चीन से जहां कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, वहां अब ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी चीन में एक व्यक्ति की ब्यूबोनिक प्लेग से मौत हो गई है। देश के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में इस हफ्ते इस बीमारी से होने वाली ये दूसरी मौत है। ब्यूबोनर शहर के स्वास्थ्य आयोग ने अपने वेबसाइट पर बताया कि ब्यूबोनिक प्लेग के एक मामले में कई अंग फेल होने से एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह संक्रमित व्यक्ति रहता था उसे सील कर दिया गया है और 7 करीबियों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इसके बाद इन सभी लोगों का प्लेग टेस्ट नेगेटिव पाया गया और उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वाओटो शहर के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि गुरुवार को चिकित्सा अधिकारियों ने 4 दिन पहले एक अन्य व्यक्ति की मौत का कारण एक रहस्यमय बीमारी बताई थी। यह व्यक्ति भी भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में रहता था। इससे पहले जुलाई में चीन की पश्चिमी मंगोलिया में 15 साल के लड़के की ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मौत हो गई थी। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरमौट जानवर के मांस खाने के कारण उस लड़के की मौत हो गई थी। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर चरम पर, दूसरी ओर चीन में ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत, पूरा इलाका सील। चीन से जहां कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, वहां अब ब्यूबोनिक प्लेग से एक हफ्ते में दूसरी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी चीन में एक व्यक्ति की ब्यूबोनिक प्लेग से मौत हो गई है। देश के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में इस हफ्ते इस बीमारी से होने वाली ये दूसरी मौत है। ब्यूबोनर शहर के स्वास्थ्य आयोग ने अपने वेबसाइट पर बताया कि ब्यूबोनिक प्लेग के एक मामले में कई अंग फेल होने से एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह संक्रमित व्यक्ति रहता था उसे सील कर दिया गया है और 7 करीबियों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इसके बाद इन सभी लोगों का प्लेग टेस्ट नेगेटिव पाया गया और उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वाओटो शहर के स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि गुरुवार को चिकित्सा अधिकारियों ने 4 दिन पहले एक अन्य व्यक्ति की मौत का कारण एक रहस्यमय बीमारी बताई थी। यह व्यक्ति भी भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में रहता था। इससे पहले जुलाई में चीन की पश्चिमी मंगोलिया में 15 साल के लड़के की ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मौत हो गई थी। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरमौट जानवर के मांस खाने के कारण उस लड़के की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में लगी भीषण आग, 7 लोगों की हुई मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सहायता का आश्वासन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक होटल में लगी भीषण आग। विजयवाड़ा पुलिस के मुताबिक होटल में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 लोगों को बचाया गया है। इस होटल का इस्तेमाल कोविड फैसिलिटी के रूप में किया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। कृष्ण जिला के कलेक्टर ने बताया सुबह करीब 5 बजे हादसा हुआ। करीब 30 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। अभी हम पूरी बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझ गई है। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। दुनिया में 2 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है कोविड-19 संक्रमितों की संख्या। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, 25,000 केसेस के साथ यहाँ के sao पाउलो सबसे प्रभावित राज्य। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,98,03,003 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,27,20,568 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,29,568 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील में शनिवार को 905 लोगों की मौतें हुई और 49,970 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहाँ मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। यहाँ पर अब तक 30,12,412 संक्रमित मिल चुके हैं। 25,000 मौतों और 6 लाख से ज्यादा मामले के साथ यहाँ का sao पाउलो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। ब्राजील संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर है। भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय हत्याकांड के मुख्य आरोपी इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर में किया ढेर। भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय की
हत्या में शामिल इनामी बदमाश राजधानी लखनऊ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी राकेश पांडे और हनुमान पांडे को मार गिराने में सफलता हासिल की है। रविवार सुबह लखनऊ के सरोजिनी नगर में एसटीएफ ने राकेश पांडे का एनकाउंटर किया है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का एक बड़ा शूटर माना गया था। माओ के कोपगंज का रहने वाला राकेश पांडे कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा था। माओ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और अन्य के हत्याकांड में भी मुख्तार के साथ आरोपी था। एनकाउंटर में मारे गए इनामी बदमाश राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का लंबा आपराधिक इतिहास रहा था। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।